आप देख रहे हैं नेम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, दैट इज नेम एडू। और आज का हमारा जो टॉपिक है, फिर से हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेके आए हैं, एंड द टॉपिक इज फैशन इवेंट मैनेजमेंट। एंड टुडे वी हैव अ वेरी रिनाउंड एंड फेमस fashion coach, a PR, and a personality who is related to social shows as well as social activities. Let's start with a short, crisp intro of Tanveer Khan. So Tanveer Khan is a fashion coach, he is a PR, he is a social activist, and he belongs to lots of organizations like Kolkata Challengers. He founded Kolkata Challengers, as well as he is also he's the president of Lions Club. Lions Club के जो एक नया यूनिट है, I think that is Lions Club. So I'm a part of the Kolkata Challengers as one of the president. Yes. But going soon to be in the district, and I founded Kolkata Heroes. And almost 5-6 years we have been associated with Tanveer Khan. And इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे how to organize pageantry awards and pageantry contest. So going with Tanveer ji, we want that you give some intro about yourself, like how you started the journey in this industry. Like I think I heard that you wanted to become a fashion coach since you understand कि fashion board के कुछ absolutely. So first and foremost, thank you so much Amresh ji. I think it's always a pleasure to be part of any of the name show. And name से ही बहुत नाम से ही पता चल जाता है, it's all name, National Academy for Media and Events. And the time when I was invited to be one of the faculty here, it was like a kind of a blooming bird for me. So I really wanted to explore new people, and then touch wood, मेरे जितने भी batches गए हैं, so they all love me because I feel that technicality is one thing that you should always take up. So talking about my career, so I come from a corporate, then kind of a inclination towards social. So ये fashion कैसे आ गया? So even I was in a kind of a very dilution. So it all started then one fine day. So I was supporting my friend who she was going to compete for an international level, and I was at the back कि अच्छा ऐसे करना है. This way you have to take it up, and this is how you have to groom yourself. This is how you have to present yourself. वो करते करते कब मेरी knowledge इस fashion industry में आ गई मुझे पता नहीं चला. Then fine, people started knowing me in the fashion industry because I kind of backed her in all the events. And then there was one event which happened in the it's one of the exhibition which happened in JW Marriott, and there the first time when I was actually invited as one of the judge to select the best exhibits. So I was like in a delusion कि अरे मतलब judging was not my cup of tea. And trust me that the entire night before that exhibition I had to scroll down all the YouTube and कि हाँ judging कैसे करते हैं, parameters क्या होते हैं, कौन कौन से parameters में sequence में आप judge कर सकते हैं, especially identification of exhibitors क्या होना चाहिए, कि उनके mode of conduct कैसे होना चाहिए. So after a lot of knowledge gaining and everything, so I took that courage to go that day. And then when I went, when I saw the love in the people, जब मैं वहाँ पे पहुँचा, so it was very easy. So मेरा first the judging panel was with the A-class people of Calcutta who are in the fashion. So it was a kind of a very, I think, a big step for me. तो वो करते करते this judging came into the picture. And trust me, if you really ask me कि till date मैंने कितने shows को judge किया, I think it's more than 200s. In the span of 4.5 years, मैंने 200 show को judges किया है. And it was not easy. So literally the first half, when you really asked me 2021 से पहले judging को लेके मेरे कुछ दूसरे notions थे. But when I was a part of the international contest and then when I went to judge their shows, trust me, it was a different layer for me. And जब तब मेरे को पता चला कि judging is also takes a lot of courage and lot of pattern to understand. तो इसमें भी बहुत पढ़ाई होती है. So when I came back, and उसके बाद जब मैं इंडिया में आया तो हमें कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हो गया था कि सिर्फ स्कोरिंग देना ही जजिंग नहीं होता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज एंड मोर ओवर यू हैव टू डॉक्यूमेंट दैट टेक्निकलिटीज. तो मेरे लिए बहुत नया शिफ्ट था. तो ये जजिंग करते 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 सिंस आई वाज माय फॉर्टे वाज इनटू द पीआर एंड इन अ इवेंट दैट वे, तो मैंने बोला कि लेट्स होस्ट. सो आई स्टार्टेड काइंड ऑफ कोचिंग इवेंट्स स्पेशली इनटू द पेजेंट्री साइड because there was an association in Indonesia who supported me कि this is how you should take it up. So मेरा वो judging से फिर startedly the PR and then holding an event, designing an event, coaching an event. Coaching an events, it's all start from A to Z of the event. तो आपको models कैसे से shortlist करना है, आपको stage layer कैसे बनाना है, आपको sequence कैसे plan करना है,
देन थॉरली आपको डिजाइनर के साथ में द कलर कोड द पैलेट कैसे डिजाइन करना है, कि आपके शो के मूड बोर्ड्स क्या होना चाहिए. सो ऑल दिस टेक्निकलिटीज आई स्टार्टेड लर्निंग एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज भी सीख रहा हूँ. So it is almost long years. आई थिंक 4.5 years. 5-6 years. हाँ, मोर ऑफ टेक्निकली अगर मैं पूछूं तो 5 साल नियर अबाउट. आई एम अबाउट टू कंप्लीट माय 5 years एंड वो फिर वो जर्नी हुई. देन व्हाइल आई वाज कोचिंग, सो होता है ना व्हेन यू नो एवरीथिंग, सो देयर वाज नो trainer out there to train people on the ramp. So they were my clients. They said, Tanveer, now we have no one, so you have to help me out. I said, I can't teach ramp because I'm not a model. I'm not trainer that way. Then they said, Tanveer, we have no options, you have to teach. So that was the first time when I actually started teaching them. So I was not very confident. उसके लिए भी खुद को टीच करना. Exactly. तो मैं फिर से जाकर all these technicalities, trainings and everything मैंने जाके पढ़ा. मैंने postures सीखा, and then करने के बाद that was the first time when I actually went to teach. So I took a long breath and I understand each of the model. So starting from different age group, and on the show it was like my judgment. So when there were a lot of industry people, so there was Tuhina Pandey also, and she said ki I just wanted to ask who has trained them. So I said I took that courage to raise my hand saying that अच्छा मैंने ही किया है. So I was in a fear कि मेरे से कुछ गलती हो गया. She said fantastic. मतलब in her 18 years of fashion industry journey, she said that if you feel that you are the beginner, then you are in the wrong direction. You have taken your step into the way beyond. तो फिर मेरे को लगा अब तो हम कोरियोग्राफी भी करवा सकते हैं. So ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी इंडस्ट्री में हो ना, तो आपको एक ए से लेकर जेड तक की नॉलेज होनी चाहिए. स्टार्टिंग फ्रॉम डिजाइनर्स की भी अगर बात करें तो मुझे पता होना चाहिए कि अगर हम कोई शूट या प्रोडक्शंस प्लान कर रहे हैं तो वो शूट प्रोडक्शंस में कलर पैलेट क्या होना चाहिए, मूड बोर्ड क्या होना चाहिए, मॉडल्स के सीक्वेंस क्या होना चाहिए. तो ये सारा चीज जब मैं डिजाइनर्स को बोलता हूं तो दे ऑल्सो गेट इन अ काइंड ऑफ अ डायल्यूशन कि अच्छा इतनी टेक्निकलिटीज तुमको पता है. मैं पहले ही पूछता कि कौन से फैब्रिक के ऊपर में हम शूट करवाने वाले हैं. वो फैब्रिक से एक्चुअली डिसाइड होता है कि आपके लोकेशंस क्या होने वाले हैं, whether you want to go indoor, whether you want to go. तो जब मैं ये सारी चीजें इंडस्ट्री में लेकर आता हूं तो जो हमारी कैलकाटा इंडस्ट्री बहुत वास्ट मैं बोलूंगा, बट देयर आर नो प्रॉपर स्पेसिफिकेशन दैट वे. तो उनको लगा कि यार ही कम्स विद अ लॉट ऑफ नॉलेज. तो आज में मैं मतलब मे बी टचवुड फॉर दैट नॉलेज I stand as Tanveer Khan in the industry. So Tanveer ji ka intro is quite vast. Okay, I think he's tried to crisp it exactly. out, right? But फिर भी I think you can't explain a big journey of 5 years within 5 minutes. But he tried his best. तो बात करते हैं fashion. Means the topic today is fashion event and fashion event management. Correct. So there are 3 terminology belongs to this entire Very topic. तो फैशन जब बात आती है सबके दिमाग में चलता है कि फैशन मतलब ये क्या होता है फैशन. व्हाट इज फैशन फॉर यू? करेक्ट. सी आई थिंक फैशन फॉर मी इज ऑल अबाउट माय कंफर्ट जोन. ठीक है. सो अभी क्या है कि इफ यू रियली सी कि पीपल हैव नो प्रायर नॉलेज अबाउट डूइंग अ शो. तो 2 चीजें हैं. एक होता है कि आप फैशन को जब प्रमोट करें, सो डेफिनेटली फैशन को प्रमोट करने का इधर 2 मीनिंग होता है. इधर यू आर ट्राइंग टू लॉन्च अ प्रोडक्ट or you are trying to launch any of the designers on board. Correct? एक सेकंड, मेरा एक्चुअली क्वेश्चन था कि फैशन क्या होता है. मतलब वी आर नॉट ट्राइंग टू एक्सप्लोर द फैशन इवेंट, दैट विल कम लेटर. Correct. बट फॉर पीपल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैशन? See, meaning of fashion is all about, उनको लगता है कि it's all about the glamour, but it's not about the glamour. As I said, it's all about your comfort zone. Right. And comfort zone का मतलब आता है the comfort outfits. तो आप फैशन में देखें तो you really want to glow and shine. तो मुझे लगता है कि आप अगर कुछ भी डे टू डे लाइफ में पहनते हैं, अगर अपने लाइफस्टाइल्स को आगे लेके चलते हैं, इट्स ऑल अबाउट दैट फैशन दैट यू वांट टू टेक. सो यू वांट टू क्रिएट योर ओन ट्रेंड. बट अभी क्योंकि इंडस्ट्री को ऐसा लगता है कि फैशन की अगर बात करें तो वो हमसे कुछ हटकर है, आपसे कुछ हटकर नहीं है. आप जो चीज पहनते हो और वो दूसरे को अगर इंस्पायर करते हो, सो आई थिंक दैट इज फैशन इन माय सेंस. सो डोंट यू थिंक दैट फैशन हैज like it's a limited thing, it depends on region to region, it changes? Absolutely. मतलब how it changes region to region? See, if you really ask on the kind of the outfits I'm talking, ठीक है. So आप अगर देखें कि इंडिया इज विद अ वास्ट डाइल्यूशन दैट वे कि सबके अपने अपने कस्टम्स होते हैं, सबके अपने अपने रीजन्स हैं, एंड अपने अपने रीजन्स के अपने अपने आउटफिट्स हैं, अपना अपना पहनने का तरीका है.
सो सेम दुपट्टा अगर आप यू रियली सी इन पंजाब, दे वो दुपट्टा को दूसरे तरीके से पहनते हैं, बट इफ यू कम टू बंगाल वो दुपट्टे को दूसरे तरीके से पहनते हैं, बट इफ यू गो टू साउथ वो सेम दुपट्टे को दूसरे, इट्स ऑल अबाउट योर स्टाइलिंग. सो फैशन का मतलब कपड़े तो होते हैं, बट उसके मोर ओवर द स्टाइलिंग पार्ट रियली डिफाइंस योर रीजन. तो हर रीजन में अगर देखें ना तो कुछ टिट्स एंड बिट्स पैटर्न्स के डिफरेंस होते हैं, कट्स के डिफरेंस होते हैं, मगर कपड़े तो कपड़े ही रहते हैं. एंड आई फील इट्स ऑल अबाउट द कंफर्टेबल आउटफिट. अगर कंफर्टेबल आउटफिट नहीं है, यू कांट स्टैंड योरसेल्फ आउट इन द पब्लिक सेइंग दैट हे आई एम फैशनेबल. Yeah, but the recent trend says that if you are comfortable, and it has to be like the public should be also comfortable when you are wearing things. बहुत कोई खुद comfortable हो जाता है कुछ भी पहन के, पब्लिक नहीं हो पाती है, तो वो फैशन है. मतलब आप बोल रहे हो कि आपको खुद को comfortable होना चाहिए. Correct. But there are many people who are comfortable wearing anything. So it's a very kind of a tricky zone this way. तो क्या होता है कि कभी-कभी कुछ चीजें हमारे पर बहुत सूट करता है, बट पब्लिकली वो सूट नहीं करता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सेप्टेंस आउट इन द पब्लिक आपको ये समझना पड़ेगा विच इधर आप बहुत सूदिंग लग रहे हो, सो पीपल विल कॉल यू वेरी फैशनेबल, इधर आप बहुत डिफरेंट लगते हो, देन पीपल विल कॉल यू अ फैशनेबल. बिकॉज उनके डेफिनेशंस जो है, फैशन का डेफिनेशन वो पर्सन टू पर्सन के ऊपर में डिपेंड करता है. कुछ कुछ चीजें हमें एक्सेप्ट नहीं करते. अगर आप हाई एंड फैशन शोज देखें तो उसमें जिस किस्म के हेयर ड्रेसिंग्स होते हैं, जिस किस्म की स्टाइलिंग होते हैं, वो हम डे टू डे लाइफ में नहीं करते हैं. करेक्ट. बहुत से ऐसे फैशन शोज में अगर आउटफिट देखें तो मेरा ये मानना होता है कि आप कोई भी कलेक्शंस को लॉन्च करें, वो हम डे टू डे लाइफस्टाइल में अगर यूज नहीं कर रहे हैं, सो देयर इज नो मीनिंग ऑफ लॉन्चिंग. बिकॉज सी एक आप मॉडल को एक ऐसे आउटफिट देते हैं, मॉडल का काम होता है वो आउटफिट को बहुत ज्यादा फ्लेयर में वो उसके आउटरीच को दिखाना. बट कहीं ना कहीं अभी एक बहुत नोशन आ गया, अगर आप देखें, so we are having a different sets of the model also. Definitely. Because we really want to compete with the lifestyle of the people in the same region. तो अभी आप देखेंगे कोई प्लस साइज मॉडल्स को लेकर काम करता है, कोई ओवर एज मॉडल्स को लेकर काम करता है, कुछ बहुत थिन मॉडल्स को लेकर काम करता है, डिपेंडिंग. सो मॉडल्स आर जस्ट अ काइंड ऑफ अ डेफिनेशन टू शोकेस द आउटफिट. इट वेरी फ्रॉम अ रीजन टू रीजन. एंड मुझे ऐसा लगता है कि एंड ऑफ द डे कपड़े वही खरीदने वाले हैं जो आपके रीजन में है. सो कपड़े उनके लिए पहनना चाहिए जो वास्ट जिनका मास हमारा है. तो वो कंफर्ट जोन दूसरे को देखने से अगर नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसे होता है ना कि हम टीवी पे जो देखते हैं, अरे ये पहन सकता बट ये कपड़ा मेरे ऊपर नहीं जाएगा. आवर सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट दिस. और फिर मैं अगर इस किस्म के अपनी वेडिंग्स में पहनूं, तो मे बी अगर हम वेडिंग्स की भी बात करें, आउटफिट्स को स्पेशली फाइंड करें, सो कलकत्ता में इफ यू रियली सी, उनके पास में एक ही कलर पैलेट है विच इज द रेड और द ग्रीन. राइट. बट इफ यू गो टू दिल्ली वेडिंग्स, they really want to go with the lot of soothing colors, the color palette, the florals. Go with the pastel. तो उनको लगेगा pastel colors, but then उनकी wedding के definitions बहुत अलग है. और यहाँ पे wedding. So again I said ना, it's all about the person to person definition, region to region, right. That way. So fashion is a global term, right? Absolutely. And it changes to region. बिल्कुल. So it's also a commercial term in terms of when we talk about fashion show. So जब शो इसमें इंक्लूड होता है फैशन में, तो इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ कमर्शियल टर्म, राइट? करेक्ट. इट रिलेट्स विद ऑल द डिजाइनर्स. ओके, अल्टीमेटली डिजाइनर्स जो बहुत सारे डिजाइन्स बनाते हैं अटायर के, नए किस्म के फैशनेबल जो अटायर्स होते हैं, तो उनका मकसद होता है कि इसको कैसे मार्केट में सेल किया जाए थ्रू अ शो. तो अब इस पे आता है लाइक फैशन शो. ओके, तो व्हाई वी अरेंज और ऑर्गेनाइज अ फैशन शो? इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है? What are the objectives of fashion show? See, the objective of a fashion show is, as I said, it's all about to launch the product. The product may be different. It could be your, outfit. It could be the accessories. It could be anything which a human can wear it. ठीक है? अभी क्या हो गया है कि since it has gone into a very wrong side, तो अगर आप fashion shows में देखें, audience ही नहीं होता है. ऑडियंस का मतलब होता है रेलेवेंट ऑडियंस नहीं होता है, रेलेवेंट क्राउड नहीं होते जो उनके बायस बन सकते हैं. सो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि ये मेरा मानना है कि अगर पकड़ लीजिए कोई एक डिजाइनर है और उसका डिजाइन रेंज स्टार्ट होता है 999 से लेकर टू 9999 तक का, तो वो उसका एक प्राइस रेंज है. तो हमें ऑडियंस भी वैसे केटर करना चाहिए जो उस किस्म की प्राइस रेंज को केटर कर पाए. बट अगर आप अभी देखेंगे फैशन शोज में मोस्टली क्या होता है, इधर कोई रिलेटिव्स होते हैं, you invite your friends, relatives जिनका कोई भी डिजाइनर लेआउट से लेना नहीं होता है.
तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, वो भीड़ तो होती है बट वो रेलेवेंट भीड़ नहीं होती। रेलेवेंट भीड़ के कारण से क्या हो जाता है, नीदर ऑडियंस को मतलब होता है कि आउटफिट में, नीदर ऑडियंस को मतलब होता है कि वो आउटफिट के मतलब से कपड़े क्या है, करेक्ट, नीदर वो जानना चाहता है कि उनकी डिजाइनर्स के स्टोर कहां पे है, राइट, करेक्ट। तो ये कहीं ना कहीं एक लूप होल्स है, एक गैप है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप। तो मेरा यही एडवाइस रहेगा, जो भी फैशन शोज करते हैं, फैशन शोज का दो डेफिनेशंस होता है, इधर यू वांट टू शोकेस अ प्रोडक्ट और यू जस्ट वांट टू सेलिब्रेट योर प्रोडक्ट। So if you really want to showcase your product, then definitely do invite relevant customers, because these are the people maybe not on the same date, but later on the date they can become your potential buyers. Or if you really want to celebrate your product, then definitely you can invite all the fashionated people in the industry to come and celebrate your product. Definitely. So there is two definition to it. एक तो जैसे you gave an answer to my question, that is who are the relevant attendees. जी. So already answer इसका मिल चुका है, because you need to invite all the relevant people who Absolutely. belongs to the product or belongs to the show. Correct. जिसका कोई पर्पस हो उस शो में। तो फैशन शो मैनेजमेंट, ओके, फैशन वी डिस्कस्ड, फैशन शो वी अंडरस्टूड, नाउ फैशन शो मैनेजमेंट. So when we discussed about management, it entire a part of the event management. Correct. Right. Absolutely. So हमारा चूंकि event management का कोर्स है, so it's a relevant topic for us. So fashion show management क्या होता है, means fashion event management अगर इस पे बात करें, so how you define into 5 steps fashion event management को? 5 step would be, सबसे पहले जो भी हमारे इवेंट इवेंजलिस्ट है, जो अपने आप को एज अ करियर देखना चाहते हैं, you really want to shine as one of the top event managers of Calcutta, सबसे पहले आपको ये रखना पड़ेगा कि ये प्रोडक्शन जो है, जो आप इवेंट शो लेकर आना चाह रहे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। हम कभी कभी शो के ऑब्जेक्टिव्स को भूल जाते हैं। शो के ऑब्जेक्टिव्स दो हो सकते हैं, इधर किसी की प्रोडक्शंस को आप लॉन्च कर रहे हैं या फिर आप कोई डिजाइनर्स या मॉडल्स को लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव समझना पड़ेगा। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, व्हेन इट कम्स टू द टेक्निकलिटीज ऑफ द overall the production, event production, there is no such definition of a stage. क्या आपको टी ही डेवलप करना पड़ेगा, आपको यू डेवलप करना पड़ेगा, आपको डब्ल्यू डेवलप करना पड़ेगा, स्टेज का कोई डेफिनेशन नहीं है इन द फैशन इंडस्ट्री। इट डिपेंड्स ऑन द आउटफिट। वंस अगेन क्या होता है, हम सारी चीजें प्लान कर लेते हैं बट हम डिजाइनर्स को केटर नहीं कर पाते हैं या उसके मूड बोर्ड को समझ नहीं पाते हैं उसके हिसाब से। You mean to say that we need to cater first, we need to understand the designer. Absolutely. First. See, suppose example, अगर मैं आपको एज अ डिजाइनर देखता हूँ, you are my client, right, and I am an event manager to host your product or celebrate your product, तो सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा कि आप कौन से कलेक्शंस को लॉन्च कर रहे हैं, right, वो कलेक्शंस क्या है। वो कलेक्शंस के बेस्ड में हमारा सारा सीक्वेंसेस हो गए, बीट लाइट सेटिंग, बीट वेन्यू, बीट द काइंड ऑफ द रिलेवेंट ऑडियंस, बीट द स्टेज प्लानिंग और बीट द ओवरऑल द कलर कोड। बिकॉज आपका रेलेवेंट अगर वो नहीं हुआ, देन डेफिनेटली वो मिक्स मैच हो जाता है विद द स्टेज और विद द आउटफिट्स। तो कभी कभी वो फ्लेयर नहीं दिख पाता है। ऐसे एग्जांपल लाइटिंग्स के ऊपर बात करें, अगर आप रेड कपड़े में अगर वार्म लाइट दे देते हो तो रेड कपड़ा पिक्चर में आपको पिंक दिखता है, राइट। सो दीज आर द फ्यू टेक्निकलिटीज मैं आपको बोलना चाहूंगा। डू अ रिहर्सल्स, डू अ फोटोग्राफी रिहर्सल्स, डू अ वीडियोग्राफी रिहर्सल, सो दैट आउटफिट्स के कलर ना चेंज हो जाए इन द पिक्चर, बिकॉज सी दीज आर द पिक्चर हु विल टॉक हाई अबाउट योर शो। सो वो कपड़ा का अगर कलर ही चेंज हो जाता है, दे डेफिनेटली यू आर नॉट एबल टू सेंड, सो द पर्पस इज नॉट शॉर्टेड। सो जनरली the term is basically you are using fashion show management is basically for the designer who want to publish or who want to showcase their product to the public so that they can sell. करेक्ट। तो अल्टीमेटली सबके साथ सेल्स जुड़ा हुआ है, राइट? करेक्ट। और ये जो फैशन शो हम लोग मैनेज करते हैं, इसका पर्पस बहुतों के साथ चेंज हो जाता है, लाइक पब्लिक टेक इट लाइक इट्स अ ग्लैमरस शो, सो लेट्स बी इनटू इट, लेट्स गेट इनटू एज एन इनवाइटी। तो ग्लैमर तो है ही, बिकॉज अंटिल अनलेस यू शोकेस ग्लैमर, होता है ना कि आप जो दिखाते हो वही बिकता है, करेक्ट, जो दिखता है वो बिकता है। तो ग्लैमर की जब बातें करते हैं, मॉडल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी तो हाउ मॉडल टेक्स एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फैशन इंडस्ट्री और फैशन शो या फैशन इवेंट में, उनका क्या रोल है? सी अभी तो मैं आई एम सो सॉरी टू यूज दिस टर्म, मॉडल हैज जस्ट बिकम अ हैंगर। दे डोंट अंडरस्टैंड डिजाइनर, Definitely. they don't understand fabric,
they don't understand whatever they're wearing, it's not about only a comfort zone, but to carry it. They're not in a position to carry the hairstyle. Even they're not in a position to carry what they're wearing. At times, हम देखते हैं, and सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो हो जाता है, ब्रिज गैप हो जाता है, कभी कभी आउटफिट्स फिटिंग नहीं होता है. तो आप पहनते हैं, कभी कभी हमें देखा गया फैशन शोज में पीछे से क्लिप लगा हुआ है. If you're not having a comfortable dress and appropriate fitted dress for a model, don't ask the model to wear it. Or the model also has this kind of a strong point ki saying to no to the designer. It doesn't go with my body. If I'm not comfortable, be it like बहुत ज़्यादा tight या बहुत ज़्यादा loose है, मैं वॉक नहीं कर पाऊंगा. अगर मैं वॉक नहीं कर पाऊंगा तो मैं आपके कलेक्शंस को बहुत बेहतरीन तरीके से शोकेस है. आजकल मॉडल का काम क्या होता है, उनको बस खाली पता है एंटर करना है, स्माइल देना है, वॉक करना है, स्माइल देके चला जाना है. इट्स नॉट अ मॉडलिंग. इट्स यू हैव टू कनेक्ट विद द ऑडियंस. यू हैव टू टेक द फ्लो ऑफ द काइंड ऑफ द आउटफिट्स यू वेयरिंग सो दैट इट बिकम्स एन आई कैच विद योर ओन ग्लैमर. आजकल मुझे मतलब ऐसा है अभी, इफ यू रियली सी इंडिया ऑल्सो, पहले क्या होता था, यू नीड टू हैव अ लिटिल बॉडी शॉडी एंड एवरीथिंग. नाउ इट्स अ टाइम फॉर द लीन मॉडल. एंड एट द सेम टाइम कलर भी नहीं है. पहले वी ऑलवेज वांट टू लुक अप, जो थोड़ी से बहुत वाइट स्किन है, हम उनको प्रेफर देते थे. नो, इट्स नॉट दैट. वी आर ऑल्सो गोइंग विद द डस्की मॉडल्स नाउअडेज एंड इट्स ऑन द हाइट. सो फेस कलर क्रेट से कुछ नहीं होता, बट देन आई वुड रियली सी हाउ यू आर फिटिंग विद द ड्रेस. एग्जैक्टली. एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप टॉप क्लासेस डिजाइनर्स अगर आप देखें ना, they always want to get the work to be done by the professionals. And professional का मतलब वो नहीं होता है कि बस आप नाम के आगे सिर्फ लिख ले that I'm a professional model. तो फिर कल जाके डॉक्टर भी लिखेगा कि I'm a professional doctor, इंजीनियर भी लिखेगा. तो ये आपका प्रोफेशन है मॉडलिंग, so you are a model. There is no alternate saying of I'm a professional model. You are a model. That means you are professional. You are a profession. This is your profession and you are a model. So ये जो फिर से adding आ जाता है I'm a professional model. So there is no such definition here. तो और एक और चीज मैं ऐड करूंगा कि if you really see region to region, हमारा region के हिसाब से हाइट के भी डेफिनेशंस हैं इन द तो अलग होता है. करेक्ट. नहीं, मैं उस क्वेश्चन पे आने वाला हूँ, बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. वो पेजेंट का जो टॉपिक है, पहले हम लोग फैशन को थोड़ा कंप्लीट करना चाहते हैं. सो 2 लेयर तो आपने बता दिया, 5 लेयर जो मैंने पूछा था. एक आपने बताया कि डिजाइनर्स. करेक्ट. सो व्हेन यू टॉक अबाउट डिजाइनर्स, जो मॉडल्स होते हैं उनके साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे होने चाहिए. दे शुड कम्प्लीमेंट ईच अदर, उनका प्रोडक्ट और जो मॉडल्स होते हैं. थर्ड जो चीज है, वेन्यू मैनेजमेंट, जिसमें वेन्यू टेक्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट. करेक्ट. सो हाउ यू डिसाइड दैट विच वेन्यू सूट्स फॉर पर्टिकुलर शो. तो इसके तो कोई भी लिमिटेशंस नहीं हो सकते. बिल्कुल नहीं हो सकते. देयर शुड हैव सम अंडरस्टैंडिंग व्हेन द शो डायरेक्टर और द फैशन इवेंट मैनेजर दे आर डिसाइडिंग कि वेन्यू लेना है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम डिजाइनर्स डोंट नो कैसे मैनेज करते हैं. बिल्कुल. इवन देयर आर मेनी डिजाइनर्स हु आर गुड डिजाइनर्स, बट उनको शो मैनेज नहीं करने आता है. They hire professional show directors, fashion show coach. Correct. इनको हायर करते. तो वेन्यू कैसे मैं आपको बताऊंगा कि आउटफिट के हिसाब से किस तरीके से आपके वेन्यू आइडेंटिफिकेशंस हो सकते हैं. इट्स वेरी सिंपल. सबको पता होता है व्हेन इट कम्स टू द समर वेयर, करेक्ट, और अ काइंड ऑफ अ वेरी समर आउटफिट्स. आप बहुत स्कूल साइज में भी फैशन शो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. यू कैन गो फॉर द इंडोर एज वेल, बट the stage layout would be very casual. ठीक है. You can't put up so much of the dramatic, the glittery stage. हम बहुत बार क्या करते हैं, बहुत glittery stage कर देते हैं. That will not go with the summer outfits. When it comes to the wedding saga, अगर आप wedding outfits को promote कर रहे हैं and you want to design an wedding events, आप pool sides में नहीं कर सकते हैं. So there has to be either an outdoor or an indoor, but the outdoor has to be a great lawn जहाँ पे आप wedding को replica कर रहे हैं. और इट शुड बी इन इंडोर जहां पे आपके पूरे डेफिनेशन ऑफ द लाइटिंग टू द स्टेज, एवरीथिंग शुड हैज टू बी अ वेडिंग सागा रिलेटेड. ठीक है. एंड अगर आप पकड़ लीजिए से विंटर कलेक्शंस आप लॉन्च कर रहे हैं, हाई एंड विंटर कलेक्शंस, सो मेरे प्रेफरेंसेस ये हमेशा होता है, गो फॉर द द काइंड ऑफ द से इंडोर लोकेशंस. व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज देन यू आर इन अ काइंड ऑफ अ कोजी सिचुएशन टू क्रिएट दैट द विंटर वाइब. ठीक है. सो वो सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें होता है, उसके हिसाब से यू कैन केटर एंड यू कैन पब्लिक दैट. तो
वेन्यू डेफिनेशन जो होता है या वेन्यू आइडेंटिफिकेशन होता है, इट इज बेस्ड ऑन टू अंडरस्टैंड द मूड बोर्ड ऑफ द डिजाइनर. तो ये आपको डिजाइनर से पूछना बहुत जरूरी है इफ द डिजाइनर इज वन द प्रोडक्शन और अ क्लाइंट टू यू. बट इफ देयर इज अ ऑर्गेनाइजर हु आर होल्डिंग अ डिफरेंट डिजाइनर्स का सेट, पकड़ लीजिए ग्रुप ऑफ डिजाइनर्स, तो ग्रुप ऑफ डिजाइनर्स में देन नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से डिजाइनर्स की क्या आउटफिट है. तो यहाँ और वो आउटफिट्स में ज्यादा रोल प्ले होता है बिकॉज़ कोरियोग्राफी वही करता है. कोरियोग्राफर. सो आपको कोरियोग्राफर से समझना पड़ेगा कि म्यूजिक रोल क्या होगा. लाइट रोल चेंज हो जाता है व्हेन इट कम्स टू फ्रॉम अ डिजाइनर टू डिजाइनर. आप पकड़ लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप बहुत हाई एंड फैशन करते हैं, सो देन डेफिनेटली देयर हैज टू बी अ डार्क रूम. You can't do it in the light room. Definitely. But the focus light should be on the pop. But आप सिर्फ अगर वेडिंग कर रहे हैं, so वेडिंग का मतलब होता है आपको आउटफिट दिखाना. You can't just play with the, you know, the front layer of the light. तो आपको पूरा लाइट्स ऐसे दिखाना पड़ेगा and you can't play with the multiple color changing वेडिंग्स में. ठीक है, अगर वेडिंग आउटफिट्स को आप शोकेस करें, उससे क्या हो जाता है कि जो आपके जो यू नो द वर्क डेफिनेशन इज देयर ना, वो मिस हो जाता है. राइट. तो थोड़ा सा इसको कंबाइन करते हैं, लाइक मॉडल्स, डिजाइनर्स, द वेन्यू. अब थोड़ा टेक्निकली अगर बात करें तो बहुत कोई इतना शोकेस कर देते हैं वेन्यू को, करेक्ट, कि जो उसका मतलब जिस्ट है, जो उसका मेन मुद्दा है, जो पर्पस है टू शोकेस द ड्रेसेस, करेक्ट, वो गायब हो जाता है और वी आर टोटली इंगेज्ड इन द एंटायर इवेंट. एब्सोल्युटली. वो इवेंट पॉपअप होके आता है और जो डिजाइनर्स का पर्पस है वो सॉल्व नहीं होता है. करेक्ट. मतलब हम लोग एक इवेंट में घुस जाते हैं. एक और टेक्निकलिटीज में बताऊंगा, बहुत सारे शोज में जब मैं जजिंग के लिए गया या फैशन शोज में गया, स्टेज का लेयर होता है वो इतना हाइट दे देते हैं कि हम जब नीचे बैठ के होते हैं ना, तो हम ऐसे देखते हैं और हमें हाफ ड्रेसेस पता चलता, हम उनके पैर ही देख पाते हैं. तो आपका अगर सेटअप उस किस्म का नहीं है जहां पे आप पूरे मॉडल्स एंड आउटफिट को देख सकें, देन डेफिनेटली उतना हाइट देने का कोई जरूरी नहीं होता. तो इस इवेंट का पर्पस दूसरा हो जाता है. एग्जैक्टली. एंटरटेनमेंट इवेंट, ग्लैमरस इवेंट. तो आप ये सब हाई स्टेज जो होता है ना, ये म्यूजिकल इवेंट में होता है जहां पे मैक्स क्राउड होता है, सो दैट व्हेन दे आर इन द टॉप एवरीवन कैन सी देम. बट इन अ फैशन वॉक स्टेज अगर आप बहुत ज्यादा हाई करते हैं, देन पब्लिक कनेक्ट नहीं हो पाएगा. आई एम टॉकिंग अबाउट द आई कनेक्ट. सो मॉडल को फिर ऐसे देखना पड़ेगा एंड पब्लिक को ऐसा देखना पड़ेगा, which is against the ethic of a ramp. Which is against the ethic of a ramp. तो अच्छा, नेक्स्ट टेक्निकलिटी में जाएंगे जी, बिकॉज बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है पेजेंट्री के साथ. करेक्ट. सो पेजेंट्री अवार्ड और पेजेंट्री कॉन्टेस्ट जब बात करते हैं तो दे आर लॉट, राइट. तो हमारे देश में जैसे इंडिया में मिस इंडिया शो, वन ऑफ द फेमस एंड वन ऑफ द यू नो मतलब लॉन्गेस्ट चली आ रही है. बिल्कुल. जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह सबने मतलब बहुत ज़्यादा इसको ऑर्गेनाइज किया पहले. करेक्ट. सो आई हैव बीन आल्सो पार्ट ऑफ मिस इंडिया सिंस आई स्टार्टेड माय इवेंट जर्नी. ओके. सो वी यूज्ड टू हैंडल द कोलकाता ऑडिशंस अर्लियर. तो हमने वहाँ पे देखा है हमेशा कि मॉडल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मॉडल्स ही होते हैं. बिल्कुल. देन कम्स टू वेन्यू, द टेक्निकलिटी साउंड. तो पेजेंट जो इटसेल्फ इज अ टर्म ऑफ फॉर द मॉडल्स, राइट. इट कैन बी मेन, इट कैन बी वुमेन. ओके. तो आप इस पे थोड़ा हाईलाइट करो, पेजेंट्री अवार्ड कंटेस्ट, ये क्या होता है? शो पे हम बाद में बात करेंगे. करेक्ट. सी, पेजेंट्री इज नथिंग, जस्ट अ कंपटीशन. हाँ. सो पेजेंट्री अगर आप देखें और मुझसे अगर आप पूछेंगे व्हाट इज एन अल्टरनेट वर्ड ऑफ अ पेजेंट्री, आई से इट्स अ कंपटीशन. पेजेंट्री का मतलब होता है कंपटीशन, एंड इट इज ऑल अबाउट यू. फैशन शो इज ऑल अबाउट द आउटफिट, द फैब्रिक, द डिजाइन्स. बट पेजेंट्री में क्या हो जाता है, इट्स मोर देन द आउटफिट, इट्स ऑल अबाउट द पर्सन हु इज कंपीटिंग. तो आप देखेंगे बहुत बेसिक डिफरेंस आ जाता है इन अ पेजेंट्री. व्हेन समबडी इज वॉकिंग द रैम्प, दे गो विद अ स्माइल, बिकॉज जब कोई स्माइल करता है तो वो बहुत अच्छा दिखता है. बट इन अ फैशन शो आप देखेंगे कि उनका जो मूड बोर्ड होता है, दैट डिफाइन कि मॉडल को हंसना है कि रोना है, right. या मॉडल को अपने एक्सप्रेशंस को कैसे लेना है. इट टोटली डिपेंड्स ऑन द आउटफिट. कभी कभी आप देखेंगे कि आउटफिट बहुत डार्क है, डस्की है, तो उसकी आई कॉन्टैक्ट, उसके शेड्स, उसके मूड बोर्ड, उसके एक्सप्रेशंस वैसे होते हैं. करेक्ट. सो टोटली, सो पेजेंट्री इज नथिंग, जस्ट अ कंपटीशन. अभी कैलकाटा में ऐसा है कि एवरीवन एंड एनीवन इज डूइंग इट. बट देन मैं आपको बताना चाहूंगा, टू डू आप जो टाइटल किसी को भी देते हैं, यू नो सम XYZ, मिस्टर, मिस, मिसेस, इसके भी रजिस्ट्रेशंस होते हैं.
Right. आपके क्राउन के भी रजिस्ट्रेशंस होते हैं. So you need to talk about the official registration authority. ऑथोरिटी. अगर कलकत्ता में बात किया जाए, मतलब अगर मैं डेटा के हिसाब से बात करूं, देयर आर ओनली 11 registered पेजेंट अक्रॉस कलकत्ता जो वेस्ट बंगाल में भी ऑपरेट करते हैं इन कलकत्ता. बट अगर आप लिस्ट देखें, देयर आर मोर देन 10,000 पेजेंट्स व्हिच हैपन. Pageants means models or the show? The show I'm talking The about. show. The show I'm talking Pageantry about. show. अब पेजेंट्री में क्या है कि कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है. Right. So वहां का डेफिनेशन Those ऑफ who अ fits मॉडल, as a features and all. एग्जैक्टली, तो वो उनका हो सकता है इधर दे वांट टू सी देमसेल्फ एज अ करियर, बट मोर ओवर पेजेंट्री में क्या हो जाता है, दे वांट टू सी देमसेल्फ एज टू लीव देयर पैशन. Okay. सो प्रोफेशन जो होता है वो फैशन शोज में होता है बिकॉज दे आर अ मॉडल. बट पेजेंट्री में जो कंपीट करने जाते हैं वो अपने पैशंस को जीना चाहते हैं. दे वांट टू सी देमसेल्फ गुड इन द पिक्चर, दे वांट टू सी देमसेल्फ गुड इन द वीडियोस, दे जस्ट वांट टू लीव दैट मोमेंट कि एक बार मेरा ख्वाहिश था मुझे रैंप में चलना है. बहुत यूनिक होता है कि जब आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, अगर आप टॉप क्लासेस पेजेंट्री को देखेंगे तो उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं और उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उनके क्राइटेरियाज होते हैं. अगर आप वो क्राइटेरियाज में फिट नहीं बैठते हो, डेफिनेटली यू डोंट सी देम एज अ मॉडल और यू डोंट सी देम एज एन एक्टर इन द इंडस्ट्री. ठीक है, तो पेजेंट्री में भी नॉर्म्स होते हैं, पेजेंट्रीज में भी क्राइटेरिया होते हैं, बट लुकिंग एट द रीजन स्पेसिफिक चेंज होते हैं, चेंज हो जाते हैं. So it also depends on the show, किसका शो है, कौन से ग्रुप का शो है, because also the group creates the criteria. They decide कि मुझे कितने हाइट का या क्या फीचर्स के मॉडल्स लेने हैं अपने शो के लिए, because they want to create some models who can fit for an ad who can fit for the industry where films and movies are being produced, and who can fit for all the glamour, like wherever you need the glamour, right? जी. तो अल्टीमेटली जब पेजेंट का बात करते हैं तो इंडिया में मिस इंडिया इज अ फेमस शो. और भी आप कुछ हाईलाइट करना चाहते हो जो शोज हैं? सी पहले ग्लैड्रग्स वाज ऑन द हाई, करेक्ट. अभी इफ यू रियली टॉक अबाउट द काइंड ऑफ द मेन पेजेंट इन इंडिया, इट्स रूबरू, which is actually going in a very good way. आप इस तरीके से सब कॉन्टेस्ट में देखिए, अगर टाइटल में देखिए, then Femina is doing great, VLCC is doing great. They go with the submission, they go with a kind of the criteria, a standard criteria for an India to compete. Because end of the day, if I see a model, if I don't get that feeling of wow, then the person doesn't suit or deserve to be in that. तो जैसे हर प्रोफेशन के लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है, तो मुझे लगता है कि टू कम टू द मॉडलिंग आल्सो देयर हैज टू बी सम स्टैंडर्ड क्राइटेरिया टू बी फॉलोड. सो हाउ वी आर कोरिलेटेड, बिकॉज हमने जब बात किया फैशन शो, देन वी स्टार्टेड विद पेजेंट्री, बोथ आर रिलेटेड, राइट? जो मॉडल्स पेजेंट्री शो के थ्रू विनर होते हैं या रनर अप होते हैं या जो भी लाइमलाइट्स में आते हैं, उन्हीं का फिर जॉब रोल क्रिएट होता है फैशन शोज में, राइट? करेक्ट. मोस्ट ऑफ द टाइम दे बिकम मॉडल फॉर सम डिजाइनर्स. ओके, तो अल्टीमेटली इट क्रिएट्स अ जॉब रोल, राइट? एब्सोल्युटली. तो इसका रिलेशन आप बताइए थोड़ा, पेजेंट्री एंड फैशन शोज. सी दो वे है. एक ये हो सकता है कि मैंने कोई इंटरनेशनल compete किया या नेशनल compete किया पेजेंट्री, या फिर कोई स्टेट लेवल compete किया एंड आई गॉट टू बी अ गुड फीचर, राइट? तो फिर किसी डिजाइनर्स ने मेरे को ऑनबोर्ड किया एंड आई एम वर्किंग फॉर दैट पर्टिकुलर डिजाइनर्स. बट एक ऑल ऑल्टरनेट है कि जरूरी नहीं है टू कम टू अ फैशन शो और टू बी अ फैशन मॉडल आपको पेजेंट्री compete करना पड़ेगा. दिस इज ऑल्सो नॉट द केस. इफ यू फिट टू द क्राइटेरिया ऑफ द डिजाइनर, देन डेफिनेटली यू आर देयर. अब वो डिपेंड हो जाता, मैं क्या बोलता हूं कि ग्रूमिंग, यू नो, अंडरस्टैंडिंग योर मूड बोर्ड, अंडरस्टैंडिंग योर पोजिशंस, अंडरस्टैंडिंग योर मूव्स और अंडरस्टैंडिंग योर कट, इट्स समथिंग डिफरेंट. बट अ स्टेज कोरियोग्राफी इट्स समथिंग डिफरेंट. स्टेज कोरियोग्राफी में आपको यह बताया जाता है कि आपको कब से लेकर कहां से लेकर कितना रुकना है. बट अ ग्रूमिंग एक्चुअली टेल्स यू योर स्पेसिफिकेशन, योर एक्स फैक्टर जो आपके अंदर में, योर स्पार्क, आपके बॉडी एंगल्स, आपके लेग मूवमेंट, आपके बॉडी पोस्चर्स, आपको बॉडी को कितना कंट्रोल करना पड़ता है. इट्स नॉट अ वन डे जॉब, या 3 दिन में भी आप क्लासेस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. तो मैं यही बोलूंगा कि जो भी प्रोफेशनल्स कोच हैं जो आपको ग्रूमिंग देते हैं वर्ल्ड वाइड या फिर नेशन वाइड या फिर स्टेज वाइड, आप उनसे ट्रेनिंग ले. अभी अगर आप कलकत्ता में भी देखें अमरीश जी कि हर लोग मतलब मॉडल है, तो वैसे हर लोग डिजाइनर भी हैं, हर लोग मेकअप आर्टिस्ट भी है, हर लोग आजकल
फैशन ग्रूमर बन जाते हैं. ग्रूमर itself is a wrong word. Right. It's a It's a wrong terminology. term. Right. You can It's a say a grooming, personality you can say a developer, trainer, trainer. you can say trainer, you can say a coach, but you can't say that you are a groomer. Right. You are grooming the people. That's again an adjective. Grooming is a different part. Right. तो ये सारी चीजें हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं We are going out इंडस्ट्री of track. बहुत वास्ट है. Right. ठीक है, इंडस्ट्री बहुत वास्ट है. तो ये जो इंक्लिनेशन फ्रॉम अ पेजेंट्री टू अ फैशन शो, ठीक है, आप पेजेंट्री के थ्रू से भी फैशन शोज में आ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली फैशन शोज में आते हैं. डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ द स्किल सेट यू हैव. ओके, थोड़ा चेंज करें पोजीशन यहाँ पे. रेडी? राइट. करें. सो तनवीर जी, नाउ वी हैव कम टू द कंक्लूजन पार्ट. अब धीरे धीरे आ रहे हैं जी. नेक्स्ट 10-15 मिनट्स विल टॉक अबाउट. तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, राइट, ये तो बात Right. कर ही रहे, बट स्टैंडर्ड में ये भी आता है कि मॉडल्स, राइट. जी. So modeling itself is a career option for Correct. people, right? Fashion, event management, it's obviously an option for career. But modeling is a career option. तो models जो होते हैं या बनना चाहते हैं, तो उनको क्या क्राइटेरिया देख के इंडस्ट्री में आनी चाहिए? बिकॉज Correct. आप इंडस्ट्री में आए तो उसके बाद आपको क्राइटेरिया पता चलता है Correct. कि ये मेरे लिए सुटेबल है. Correct. तो जो वो एस्पायरिंग होते हैं करियर के लिए मॉडलिंग में जाना है, उसको क्या समझना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए, और वेदर दे फिट्स इन और नॉट, पहले से डिसाइड करके आना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस पे थोड़ा इफ यू वांट टू हाईलाइट. हाँ, सो आई थिंक एज आई सेड ना कि कोई भी जॉब रोल हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, तो हर चीज़ों का एक अपना क्राइटेरिया होता है. डेफिनेटली अगर आप फैशन की बात करें ना, तो हमें बहुत ग्लैमरस चाहिए होता है. तो वो अगर वाउ फैक्टर नहीं आता किसी को देखकर, चाहे वो उसके फेस वैल्यू से हो या उसके स्टाइल से हो या उसके लाइफस्टाइल से हो या उसका ऑरा से हो, तो वो चीज़ नहीं आएगा. तो सबसे पहले अगर आप देखें, देयर इज आल्सो डेफिनेशन एंड डिफरेंस कि आप जो प्रिंट वाले मॉडल्स होते हैं, तो उनमें कोई हाइट डेफिनेशंस नहीं होता है. वो थोड़े अगर 1920 भी होते हैं, बट इफ दे आर गुड in the kind of the camera posing and flaring with emotions, you can take them. But when it comes to the ramp modeling, then definitely you have to follow certain standards of the layer of a model, जहां पे compulsion national wide अगर हम देखें, जो पेजेंट्री में भी है, इंटरनेशनल स्केल अगर आप कंप्लीट करेंगे, for boys a minimum 6 is required. मोस्टली इंटरनेशनल्स में जाने के लिए. तो ये तो हाइट क्राइटेरिया आ जाता है. सेकंड हो जाता है, एज आई सेड, वाव फीलिंग. तो कोई भी मॉडल ना, nobody wants to take someone who is very bulky that way. तो अगर हम फेस का कटिंग के बारे में बात करें, the person has to have a very sharp jaw line. उससे क्या होता है कि एक्सेसरीज, एग्जैक्टली, तो उससे क्या होता है कि whenever you wearing an accessories, it is easily visible. ये हम बोलते हैं ना जॉ लाइन होना चाहिए, जॉ लाइन, बट जॉ लाइन क्यों होना चाहिए? You know why I have not decided to become a model, because I have found since childhood मेरा जॉ लाइन आएगा ही नहीं. Okay, even I can't create. नहीं, आपका शार्प है, बट वैसे भी शार्प नहीं है. Just joking. Okay. हाँ. But जॉ लाइन्स are very important. Very important. आजकल आप रील्स या इंस्टाग्राम में सब जॉ लाइन पे फोकस करते हैं. Very true. Celebrities and all the actors and all. So जॉ लाइन से क्या होता है? Whenever you wearing any accessories ना नेक में भी, so it's easily visible. तो जॉलाइन हम क्यों बोलते हैं? Right. उसके बाद में क्या होता है कि जॉलाइन के साथ साथ में नेक स्ट्रेंथ देखा जाता है, जहां पे whenever you wearing शेरवानी और समथिंग, उनका हमेशा हाई नॉच होता है, shouldn't touch your. Right. तो इसके लिए भी क्या होता है, when you're too bulky that way, तो ये लेयर आपकी शेरवानी में दब ना जाए, और दबने से आपका वो स्पेसिफिकेशन ना दिखे. ये बहुत टेक्निकल है, छोटी छोटी टेक्निकल्स है. देन डेफिनेटली द पर्सन शुड नॉट बी वेरी बल्की लाइक अ जिम काइंड ऑफ. अगर कोई जिम कर लेता है तो ऑटोमेटिक देखिएगा उसके हाथ ऐसे हो जाते हैं. वी डोंट वांट अ मसल स्टिफी मसल्स. हाँ, दैट स्टिफनेस नहीं चाहिए होता. वी वांट लीन, बिकॉज लीन पीपल आर वेरी मच फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल बिकॉज सी पोजिंग्स में ना, अगर आपके पोस्चर्स करेक्ट नहीं है, then definitely you are not there to showcase. बहुत टेक्निकल मैं बोल रहा हूं. अगर आप देखें, अगर आप बहुत नॉमिनल खड़े होते हैं तो आप अच्छे दिखते हैं, करेक्ट. और जरा सा पैर आगे पीछे कर लेते हैं तो आपका पूरा पोस्चर्स गलत हो जाता है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेरिएशंस ऑफ द हाइट. अगर आपका हाइट सही है तो आपका पूरा वेबलेंथ भी सही आता है करके दैट वे. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फॉर अ रैम्प, height is the most major line. when it comes to the color of the body,
we are now very open to the dusky models as well, looking at the international level. Right. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, you have to have a very fair complexion No, that's model. out of That's context nowadays, right? Correct. पहले था, I guess. पहले था, that Now was one of the scenario has got requirements. changed. That was one of the requirements. Right. So it's a social thing also for Correct. us because we have And shoulder is also very important. Male categories के लिए. For a female, hip line and a hip point, hip cut is very important. collar bones and all. Collar bones and Right. everything. Yeah. So जो गर्ल या वुमेन कैटेगरी होते हैं देयर इज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डिपेंड्स ऑन रीजन, जैसे इंडिया का एक स्टैंडर्ड होता है. Correct. सो व्हेन वी टॉक अबाउट फेमिना तो उसके भी रीजनल स्टैंडर्ड होते हैं. Correct. सो फॉर नॉर्थ ईस्ट दे सेट सम अदर स्टैंडर्ड Correct. गाइडलाइंस कि आपका 5 या 5 के नीचे 5'4" तक आप एक्सेप्ट कर सकते हो. Correct. बट देयर स्टैंडर्ड इज बेसिकली 5'5", 5'6" Correct. फॉर गर्ल्स, राइट. तो ये स्टैंडर्ड जब सेट होता है तो वन हु आर सेटिंग फॉर अ करियर इन मॉडलिंग, तो उनको क्या क्या प्रिपरेशन करना पड़ता है इसके साथ साथ. मतलब हाइट तो आप बढ़ा नहीं सकते रातों रात. Correct. तो फिर वो एस्पायरिंग मॉडल्स बन नहीं सकते, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है. और See, as I said ना, जिनका ये सब प्रोसेस लैक है, मैं क्या बोला, there are a lot of other options as the print. ठीक है, अब आजकल सोशल मीडिया इज ऑन द हाइप, रील इज ऑन द हाइप, राइट. बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे, ब्रांड्स आप देखेंगे कि आपको प्रोडक्ट देखकर दे रियली वांट टू टॉक अबाउट हाई. सो इफ यू हैव दैट फीचर टू शोकेस द प्रोडक्ट गुड in a good way or in a good communication, I think you are there, because end of the day visibility matters the most. राइट. चाहे वो रैम्प में हो, प्रिंट में हो, या फिर कोई डिजिटल में भी हो. करेक्ट. तो अगर आपकी विजिबिलिटी नहीं है, इन एनी ऑफ द केस यू आर नॉट देयर. तो ऑप्शंस इतने अवेलेबल हो गए, पहले ऑप्शंस नहीं थे. अभी क्या है, प्रिंट के भी ऑप्शंस बहुत अवेलेबल. अभी कोलकाता पूजा इज कमिंग, सो यू विल सी एवरीवेयर द होर्डिंग्स. अब वो होर्डिंग्स आइडेंटिफिकेशन आप नहीं कर पाएंगे कि मॉडल का हाइट कितना है. सो इट्स ऑल्सो वन ऑफ द कीज दैट यू नो वन कैन लुक अपॉन. ठीक है. सेकेंड, मुझे ऐसा लगता है कि apart from the print, this digital is playing a major role. Nowadays डिजिटल में भी you can't go with the kind of the height sequence. आपको वहां पे हाइट बहुत ज्यादा मेजर नहीं पता चलता until unless you have two different heights to be showcased. ठीक है. तो ये मुझे ऐसा लगता है this is one of the option जिनको लेना. But then again I'm talking about you can earn commercial, but technically fashion show जब तक आप रैम कंप्लीट नहीं करते, यू कांट डिफाइन योरसेल्फ एज अ मॉडल आल्सो. डेफिनेट. तो वो मॉडल का जो पर्पस है वो आपके लिए सॉल्व नहीं हुआ, दूसरे के लिए सॉल्व हो रहा है. ओके. सो हियर वी गो विथ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेशन, दैट वी हैव ऑलरेडी कंपाइल्ड एंड पाइल्ड द लेयर ऑफ करेक्ट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इवेंट मैनेजमेंट इन फैशन. तो हमने मॉडल्स पे बात किया, हमने वेन्यू मैनेजमेंट पे बात किया, हमने टेक्निकलिटीज़ पे बात किया. टेक्निकलिटीज़ पे थोड़ा और बात एक करेंगे. हमने ये भी बात किया कि डिज़ाइनर्स वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज दे आर द मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर फैशन शो. ओके. इसके बाद जब बात करते हैं कि फैशन शो में इट्स अ ट्रेंड, इट्स नॉट ट्रेंड, इट्स अ नेसेसिटी टू हैव अ फैशन एक्सपो, एग्जीबिशन. तो इसका इम्पोर्टेंस एंड हाउ इट कनेक्ट द इंटायर मॉड्यूल ऑफ फैशन शो मैनेजमेंट, इसको कैसे कनेक्ट करते हैं. करेक्ट. सो पहले तो मैं एक चीज बोलूंगा जो एक्चुअली सिटी में हो रहा है, विच इन द रॉन्ग इंक्लिनेशन. आप खिचड़ी नहीं बना सकते किसी चीजों को. खिचड़ी इंग्लिश में. हाँ. सो यू कांट यू नो मिक्स मैच एंड यू नो पुट एवरीथिंग टुगेदर ऑन वन प्लेट. अ फैशन एक्सपो इज समथिंग डिफरेंट वेयर you showcase the products of the designers, not via models, without a model. अभी आप देखोगे कि एक्सपोज में भी फैशन शोज होने लगे हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है, कुछ ब्रांड्स बहुत हाईलाइटेड हो जाते हैं, कुछ ब्रांड्स हाईलाइटेड नहीं हो जाते हैं. तो मैं बोलता हूँ हर चीज का एक डेकोरम होता है करके. सो डेफिनेटली फैशन एक्सपोज आर वेरी मच रिक्वायर्ड दिस डेज, बिकॉज नया ट्रेंड, नया स्टाइल, नया कलर पैलेट, नया कोड, ये समझने के लिए हम कहाँ जाएंगे. डेफिनेटली हमें विजिट करना पड़ेगा. और अंडर द रूफ अगर हमें मिल रहा है यू नो मल्टीपल डिजाइनर्स, मल्टीपल यू नो ज्वेलरी पार्टनर्स एंड एवरीथिंग जो फैशन में है, करेक्ट, तो मुझे लगता है कि इट्स वन ऑफ द गुड ऑप्शन. एंड यहाँ पे क्या ना, देयर इज नो स्पेसिफिकेशन ऑफ द ऑडियंस ऑल्सो. राइट. ऐसा नहीं है कि, बट देन यू हैव टू सेट योर टारगेट डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ द बजट ऑफ द एग्जीबिशंस. डिजाइनर्स का भी बजट देखना पड़ता है. हाँ. तो उसके हिसाब से आप क्या ना, मास को अगर आप लेते हैं ना, एंड यू कीप you know fashion range
from 000 to 000 to that 4 digits. Definitely. तो उससे क्या होता है, you are able to cater and give that lifestyle to everyone in the mass, because end of the day आप कुछ भी बनाते हो वो मास के लिए बनाते हो या फिर स्पेसिफाइड ग्रुप्स के लिए बनाते हो. तो मुझे लगता है कि फैशन एक्सपो जो है इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड, एंड इट्स जस्ट नॉट अबाउट अ रेडीमेड गारमेंट्स or a ready-made design, Customized. where you can also connect with the designers or the brand you are associated with. You can tell about your specification so that designers can actually module, work upon it and bring it to the table the best designs. So we know that, and we have also seen Correct. lots of fashion expo has itself a ramp built and there's a ramp walk going on, okay, showcasing the product. तो इसका मतलब तो ये होता है ना कि we have some designers who wants to highlight their product through the Correct. ramp show, okay. Means बहुतों के पास बजट का constraint होता है, so they don't put their money on ramp show to showcase the product. Correct. So it's also a way out to showcase your product through models. They walk on ramp and showcase their product. It gets highlighted because एक marketing का एक strategy भी है. Correct. Okay. जी. So it can be doable, right? It is doable, but मैं क्या बोलूंगा, टाइम फ्रेम आपको मैच करना पड़ेगा. ये टाइम फ्रेम डिसाइड्स करना पड़ेगा. पकड़ लीजिए, अगर आपको लोकेशंस भी कैटर करना पड़ेगा. Venue, location. मतलब आप अगर पकड़ लीजिए, आपके पास 2 सेक्शंस हैं. वन सेक्शंस में यू आर हैविंग अ फैशन शो, सो पीपल हु रियली वांट टू गो एंड सी एंड अंडरस्टैंड द डिजाइनर और द काइंड ऑफ द स्टॉल, so they can actually go and identify, अच्छा ये jewelry been by so and so and the stall number is this, so I can go and see the models walking with the attire and the accessories and everything. तो वो जगह में it plays a very important role for an anchor to also discern the kind of the so it's a part of the marketing. It's part of the marketing, but then should not be included in the same venue. It should not be There has to be some dividend. Right. So मतलब उसी को हम लोग ज्यादा हाईलाइट कर देते हाँ, कभी and वो लोग देखकर है, हाँ, लोग देखकर वहां से निकल जाते हैं. So end of the day फिर क्या होता है कि जिनका देखा, हो सकता है आप उनके स्टॉल तक गए, और जिनका नहीं देखा आप वो स्टॉल में विजिट ही करने नहीं गए, because you feel that's not a brand. Right. See, brand is nothing, it's just about your trust. Definitely. Correct. So अल्टीमेटली अगर बोला जाए तो हम लोग सारे लेयर्स समझ गए एक फैशन शो का, पेजेंट्री के अवार्ड्स. अब इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है हमारा, जो इवेंट मैनेजमेंट पार्ट है. सो एक इवेंट मैनेजर या इवेंट कोऑर्डिनेटर बोल सकते हैं, जो इवेंट प्लानिंग करते हैं, जो डायरेक्ट करता है पूरे इवेंट को, उसके लिए तो ये सारी चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है. बीइंग अ फैशन कोच, यू अंडरस्टैंड द पार्ट लाइक डिजाइनर्स, जो द कोरियोग्राफी, द ग्रूमिंग पार्ट, यू अंडरस्टैंड वेल. बट एक डायरेक्शन का पार्ट भी होता है, जो शो डायरेक्टर्स होते हैं, तो उनको तो ये भी डिसाइड करना पड़ता है, या कोच को, कि जब मॉडल वॉक करेंगे रैम्प पे, जैसे कैट वॉक वगैरह स्टाइलिंग जो अपने होते हैं, तो उनका म्यूजिक सिलेक्शंस जो सूदिंग करे, तो एक टेक्निकलिटी का पार्ट आता है. तो इसमें इवेंट डिजाइनर्स या इवेंट डायरेक्टर्स का भी रोल प्ले होता है. Correct. They also understand the music, they also understand the lights, they understand the sound required. Correct. They understand कि क्या रैम्प होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जहाँ पे you can at least walk a particular distance and it can be showcased well. Correct. तो इसका रोल प्ले कितना इम्पोर्टेंट है? मैं आपको बताता हूँ. For event planners. Yes. See, ब्रिज गैप है यहाँ पे. ब्रिज गैप ऐसा है कि जो शो डायरेक्टर्स होते हैं, शो डायरेक्टर्स का ब्रिज गैप जो होता है वो 2 लोगों को कनेक्ट करते हैं, इधर द ऑर्गेनाइजर और द डिजाइनर्स, करेक्ट, विथ द इवेंट प्लानर्स. ये उनका काम होता है शो डायरेक्टर का, क्योंकि शो डायरेक्टर को पता रहता है द टेक्निकलिटीज ऑफ द डिजाइनर्स एंड द ऑर्गेनाइजर. अब वो प्रोजेक्शंस को वो इवेंट प्लानर के साथ में मिलके सारे सीक्वेंस को, बीट स्टेज, बीट लाइटनिंग, बीट वेन्यू, बीट फूड, बीट एनीथिंग दे वांट टू ड्रॉ इन, वो उनका काम होता है. अब आ जाता है इवेंट प्लानर्स बिकम्स द ब्रिज गैप बिटवीन द शो डायरेक्टर एंड द वेंडर. जो हमारे टेक्निकल पीपल होते हैं, जो लाइट लगाते हैं, साउंड को सेट करते हैं, स्टेज को बनाते हैं. नाउ इवेंट प्लानर का काम होता है टू बी अ ब्रिज गैप बिटवीन दीज टूज. तो ये आप देखें ना, हर लोगों का एक वर्क डेफिनेशन होता है, एंड वो वर्क डेफिनेशन को समझ के अगर हम चले, अब उसके प्रोसेस में चले या उसके ऑब्जेक्टिव को अगर समझे और अपने रूल्स को अगर हम समझे, टीम वर्क इज इंपॉर्टेंट आउट हियर. एग्जैक्टली. सो इवेंट प्लानर अगर आप देखें ना, तो पूरे शो में 2 लोग बहुत हाईलाइट्स होते हैं.
एक जो इवेंट प्लानर होता है उसका काम होता है एक सपना को, एक ड्रीम को प्रोजेक्ट करना रियलिटी में लाना, और शो डायरेक्टर का काम होता है वो पूरे प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करना, डायरेक्ट करता है, राइट। करेक्ट। सो शो डायरेक्टर का लेकर एंड इवेंट प्लानर का दोनों का जो सीक्वेंस होना चाहिए वो बहुत तगड़ा होना चाहिए। अगर तगड़ा नहीं है देन डेफिनेटली समथिंग, जैसे आपने टेक्निकलिटीज की बात की, चाहे वो लाइटनिंग से लेकर, लाइट पोजीशनिंग से लेकर, आपका म्यूजिक से लेकर, म्यूजिक एडिटिंग से लेकर, या फिर डिजाइनिंग से लेकर, एवरीथिंग should has to be customized, should has to be customized and with a rehearsal before the show, राइट। correct। बहुत कोई रिहर्सल पे उतना फोकस नहीं करते, बट देन मुझे ऐसा लगता है कि आप शो के पहले एक ट्रायल रन बहुत जरूरी है। आप बड़े बड़े जितने भी अवार्ड शोज है, फेमिना भी देखते हैं ना, तो उसमें भी ट्रायल रन होता है, ड्राई रन होता है। अगर आप ड्राई रन नहीं करते हैं देन डेफिनेटली यू विल बी फर्स्ट ऑन द स्टेज। आपको म्यूजिक पता है, मॉडल्स को टाइमिंग पता है, आप एज अ शो डायरेक्टर आपने बता दिया, बट टेक्निकली अगर आप इवेंट प्लानर की बात करें, इवेंट प्लानर का काम होता है वेंडर से वो सारी चीजों को करवाना, बट कभी कभी रिक्वायरमेंट ही नहीं पता होता, और हम कितनी देर तक के म्यूजिक को टर्नओवर करेंगे, स्टॉप कहां पे करेंगे, ये शो डायरेक्टर बताएगा। सो थिंग्स वी हैव नाउ मेड अ एंटायर जिस्ट ऑफ द इवेंट प्लानिंग फॉर फैशन, राइट। तो फैशन में पेजेंट्री के बारे में बात की, फैशन में शोज के बारे में बात की, एग्जीबिशंस वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक फैशन शो कौन मैनेज करता है अल्टीमेटली, जिसमें हम लोग शो डायरेक्टर और इवेंट प्लानर दोनों का कंबाइन रोल प्ले इंपॉर्टेंट है, ये हमने डिस्कस कर लिया। बट अल्टीमेटली एक फैशन डिज़ाइनर, एक इवेंट प्लानर, एक शो डायरेक्टर, सबको एक गोल में बनना पड़ता है, राइट। देयर हैज़ टू हैव अ पर्पस, द पर्पस इज टू शोकेस द प्रोडक्ट। जब फैशन शो में बात करते हैं और जब पेजेंट्री में बात करते हैं तो शोकेस द मॉडल्स, राइट। वहाँ पे मॉडल का ही ज़्यादातर स्पेसिफिकेशन देखा जाता है। तो ये सब का एक अगर पाइलिंग करें तो हाउ वी कैन कंक्लूड, क्या होना चाहिए अल्टीमेटली? सी आई थिंक सबसे बड़ा बोलते हैं ना कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये बहुत बड़ा एक रॉन्ग स्टेटमेंट है कि आप सब कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन टेक्निकलिटीज में बी सुपर्ब है, यू गो विद इट, बट कुछ कुछ लोगों के दूसरे स्पेसिफिकेशन एंड टेक्निकलिटीज है। यहाँ पे क्या होता है कि जो शो डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो वेंडर से डायरेक्टली बात करके सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए बोलते हैं, वो ऑर्गेनाइज भी कर लेते हैं, बट मेजर मिसिंग क्या हो जाता है इन सारी चीजों में कोऑर्डिनेशन, जिसके वजह से इधर शो होल्ड हो जाता है। बिकॉज शो डायरेक्टर का काम आपको सामने से फ्रंट से काम करना है, राइट। ठीक है, तो वो बैकएंड मैनेज करने में या फिर बिजी हो जाता है या फिर बैकएंड मैनेज नहीं कर पाता, तो शो की वाट लग जाती है। स्टेज में बंदा आया, म्यूजिक बंद हो गया, तो वो फिर स्टेज कंप्लीट नहीं हुआ, म्यूजिक चालू हो गया, दूसरी म्यूजिक बज गया, हमें बजाना था ए, बज गया बी, लाइट देना था सी, लगा दिया ई। तो ये जो टेक्निकलिटीज आप जरूर, मतलब आप इतने बड़े शो को ऑर्गेनाइज करते हो, अगर आपका स्पेसिफिकेशन रैम सीक्वेंस में है, कोरियोग्राफी करने में है, शो को पूरा डायरेक्ट करने में है, तो डेफिनेटली जो इवेंट प्लानर्स होते हैं उनके स्पेसिफिकेशन होता है कि आपके इवेंट को 4 चांद लगाए। तो सबका काम का एक अलग अलग स्पेसिफिकेशन होता है। तो मैं ये जो लोग हमें देख रहे हैं या देखने वाले हैं, आप प्लीज अगर आप छोटा भी इवेंट अगर प्लान करते हैं, डोंट कॉल योरसेल्फ एज शो डायरेक्टर एंड इवेंट प्लानर बोथ। Either you would be an event planner or you would be a show director. Both are different job. Both are different job and both have a different job responsibilities. So एक दिन में आप 2 काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप छोटा भी शो करें या बड़ा भी शो करें, definitely you hire an event planner or the event production house. अब आप बोलेंगे मुझे ये event planner and production कहां से मिलेगा? So there is the best option in the city. Simply आप हमें देख रहे हैं, सो यू नो अबाउट द नेशनल एकेडमी फॉर मीडिया एंड इवेंट्स। इसमें हम लोगों को पर्टिकुलर ट्रेन करते हैं ऑन ऑल द टेक्निकल्स, ताकि आपके सपने को एक आशा देकर प्रैक्टिकल रूप में हकीकत बनाए। तो अगर आपको लगता है इफ यू आर रियली लुकिंग फॉर एन इवेंट प्लानर, सो देन नेम इज द बेस्ट ऑप्शन एंड यू कैन गेट एज पर योर बजट। तो बहुत बार फेयर होता है कि बहुत ज्यादा बजट चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन दैट यू रियली लुकिंग फॉर।
आप प्रोडक्शंस के लिए खर्च कर देते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द सर्विसेज सर्विस आप नहीं देना चाहते हैं. सो डेफिनेटली कोई भी मेहनत करता है फ्रॉम अ डे 1 टू डे एंड, वो कोऑर्डिनेशन का एक सर्विस चार्ज होता है एंड यू हैव टू टेक इट. आई एम श्योर इफ यू हैव द बेस्ट प्लानर इन बोर्ड, योर शो इज गोना रॉक राइट. एंड वो स्मूथ जाएगा. टू मेक योर इवेंट स्मूथ, you need to have a event management or a production house on board. तो आपके पास ऑप्शन भी है एंड आपको ऑप्शन मिल भी गया है कि कहां से आपको इवेंट प्लानर को ऑन बोर्ड करना है. तनवीर जी, आप बहुत जल्दी में कंक्लूड करना चाहते हो, राइट? आई वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन. जी, ठीक है. थोड़ा आप जॉब रोल वाइज, कैटेगरी वाइज सबको बता दीजिए कि क्या क्या रोल प्ले जरूरी है, किसका रोल प्ले एक पूरा फैशन शो को या पेजेंट्री अवार्ड को मैनेज करने के लिए किस किस हेड्स की जरूरत पड़ती है. बिल्कुल. ओके, मतलब पर्सन वाइज जो अपने हेड्स है, डिपार्टमेंटल करेक्ट, जिसमें हो सकता है 4 डिपार्टमेंट हो या 5 डिपार्टमेंट हो, तो 1 by 1 स्टार्ट करते हैं. करेक्ट. ठीक है. So, मैं एकदम यहां से जाता हूं, मैं ग्राउंड लेवल से जाता हूं. सबसे पहले आ जाता है एक डिपार्टमेंट जो होता है जिसको हम बोलते हैं इवेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. इवेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के अंदर में 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं. पहला डिपार्टमेंट आपका प्रोडक्शंस का होता है. प्रोडक्शंस के अंदर में सारे आपके वेंडर्स आ जाते हैं. सेकंड हो जाता है आपका मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होता है, जो पूरे आपके इवेंट मैनेजमेंट को, फ्लो को, सारे सपोर्ट्स को स्मूथ ऑपरेशन देता है. तीसरा डिपार्टमेंट में हो जाता है जो पूरे चीजों को डॉक्यूमेंट करे, जिसमें फोटोग्राफी हो जाती है, वीडियोग्राफी हो जाती है, आपके मीडिया पर्सनालिटीज हो जाते हैं. तो ये पूरा मेजर सेगमेंट जो होता है वो पूरा इवेंट का ये रोल में जाता है. सेकंड, अगर हम बात करते हैं शो डायरेक्शंस की बात करते हैं, शो डायरेक्टर्स के अंदर में मेकअप कोऑर्डिनेटर्स आ जाते हैं जो सारे मेकअप को कोऑर्डिनेट करेंगे. शो डायरेक्टर्स के अंदर में आपको सीक्वेंस कोऑर्डिनेटर हो जाते हैं जो आपको सारे बैक स्टेज सीक्वेंस रेडी करके देंगे. शो डायरेक्टर्स के साथ साथ में आपको जनरली जो शो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनको चाहिए होता है. उसके साथ साथ आपको मॉडल कोऑर्डिनेटर चाहिए होता है जो आपको मॉडल को कोऑर्डिनेट कर सके. अब बात बता दें कि आपको मॉडल कोऑर्डिनेटर्स एंड शो सीक्वेंस कोऑर्डिनेटर क्यों दरकार होता है. बिकॉज मॉडल कोऑर्डिनेटर्स नो द मॉडल वेरी वेल एंड दे कैन एक्चुअली डायरेक्ट द मॉडल्स टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस की अभी आपके तीसरे नंबर में ये आने वाला है. एंड सीक्वेंस कोऑर्डिनेटर क्या करता है, डिजाइनर्स के जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनके साथ मैच करके इंश्योर करता है कि आपका ये सीक्वेंस है और आपको ये आउटफिट पहनना. ये मेकअप कोऑर्डिनेटर है, मेकअप कोऑर्डिनेटर बताएगा ये आउटफिट के साथ ये मेकअप जाता है. तो अगर आप सोचते हैं कि एक इंसान आप सारा काम कर लेंगे, बिल्कुल नहीं. तो ये हो जाता है सेकेंड लेयर हो जाता है. तीसरा लेयर जो हो जाता है पूरा इवेंट की अगर हम बात करें तो मेन जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजर का काम होता है अपने लोगों को होस्ट करना. Organizer means the person who is sponsoring that. So you have to keep yourself free. ये सारी चीजों की जिम्मेदारी जो होती है वो एक इंसान के हाथ में होती है, other than the event planner and the show director, that is called an anchor. जो होस्ट करते हैं. तो ये सारी चीजों की जो निचोड़ होती है, टाइमिंग्स होती है, ये सारे एंकर डिसाइड करते हैं कि आपके शो को कितने लेयर में लेकर जाना है. तो ओवरऑल अगर आप डिपार्टमेंट्स की बात करें तो डेफिनेटली 3 बोले, 4 बोले, 5 बोले, बट हर चीजों के लिए एक कोऑर्डिनेटर जरूरी होता है. अब जैसे कि अगर आप फूड एंड बेवरेजेस देखते हैं तो डेफिनेटली इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शो, फैशन शो और वो एकदम सेपरेट होना चाहिए. तो आप फैशन शोज में मैं आपको बता दूं, ड्यूरिंग द फैशन शोज you will never find anyone consuming anything. It's all after a party gathering. Show khatam, there is a break of 15-20 minutes which called a networking. Once the networking is done, you are done with your designs and everything, then you are a part of the party, a gala party which either has a dinner or a high tea or anything, or a cocktail dinner. तो शो के दौरान कोई खाना पीना नहीं होता है. शो के बाद इज ऑलवेज अ पार्टी वेयर पीपल टॉक, वेयर पीपल इंगेज, वेयर पीपल अंडरस्टैंड, वेयर पीपल नेटवर्क. देन कम्स द फूड एंड बेवरेजेस. हम क्या कर देते हैं, शो के दौरान खाना सर्व कर दे रहे हैं, अटेंशन. सो वो पूरा शो में क्या हो जाता है, वो सारी चीजें बेकार हो जाती है. So we have talked a lot about a particular topic which is one of the, you can say it's a very glamorous topic we are talking about. Absolutely. But उसके पीछे बहुत सारे technicalities छुपे हुए हैं
देयर आर लॉट्स ऑफ स्टेप्स टू फुलफिल द इंटायर गैप, ओके, बट इन सबका जो रोल प्ले होता है इवेंट प्लानर, शो डायरेक्टर के ऊपर कंधों पे ही जिम्मेदारी रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज दे आर टेकिंग द कंट्रोल ऑफ द इंटायर शो। बिल्कुल, क्योंकि एक डिजाइनर्स भी डिपेंड करता है कि आप मेरे शो को कैसे आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो, राइट, दे आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन यू। एक मॉडल्स भी आप पे डिपेंडेंट होते हैं, बिल्कुल, और जो स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं आपके शो को वो भी आप पे ही डिपेंडेंट है कि मेरे शो कितने अच्छे से रन हो रहे हैं। तो तनवीर जी, इट हैज़ बीन अ नाइस टॉक रिगार्डिंग इवेंट प्लानिंग फॉर फैशन एंड पेजेंट्री। फिर आपसे जरूर मिलेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि तनवीर जी को फिर से इनवाइट किया जाए इस टाइप के शो में, जहाँ पे ही कैन हाईलाइट लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट फैशन एंड पेजेंट्री अवार्ड्स एंड शोज। सो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग ऑन नेम का अपने यूट्यूब चैनल पे। और जितने भी स्टूडेंट्स या जो भी इसको देख रहे हैं इस चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड गो फॉर द नेक्स्ट, बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ टॉपिक कमिंग टुगेदर। इसके बाद भी हमारे नए नए बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। अगर आपको इस टॉपिक को अच्छे से सीखना है तो प्लीज़ कम इन, बी ए विजिटर फॉर अस, हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी विथ आवर कोऑर्डिनेटर और काउंसिलर। वो आपको करियर ऑप्शन भी बताएंगे कि इवेंट मैनेजमेंट में या फोटोग्राफी में, मॉडलिंग में, हमारा मॉडलिंग का भी आने वाला है, अभी हम लोग ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर रहे, इन सब में आप करियर कैसे बना सकते हैं, स्पेशली मीडिया और एंटरटेनमेंट फील्ड में। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है एंड वी आर कंप्लीटिंग द एंटायर थिंग्स। और धन्यवाद देना चाहते हैं तनवीर जी को फॉर कमिंग ऑन दिस शो और सारे